यू सबसे पहले आज भी संडे को आपने टाइम निकाला, सबने ज्वाइन किया। डॉक्टर मोहन, आपको भी थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस। So I want to introduce everyone to Dr. Mohan. So he is an eye surgeon. इन्होंने MBBS कर रखा है, he is DO, DNB and FRCS कर रखा है in जनरल सर्जरी। तो उन्होंने फेलोशिप करी है ऑप्थेमोलॉजी में फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ ग्लासगो यूनिवर्सिटी जो स्कॉटलैंड में है। करंटली ही इज प्रैक्टिसिंग एट फर्स्ट आई केयर न्यू दिल्ली के अंदर। सो ही हैज 24 years of experience and he is a life member of All India Ophthalmological Society, life member of Delhi Ophthalmological Society, and life member of National Academy of Medical Sciences. So with this, I want to welcome Dr. Mohan. Welcome for joining all of us. So over to you, Swamiji. Thank you so much, Dr. Mohan, for joining us today. Unfortunately, today our international guests are not there. वो लोग join नहीं किए. There are 4 countries generally they join. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बेसिक क्यूरियोसिटी होता है कि आँख काम कैसे करता है, how it works. See, when I speak now, I think I'll not be using more of scientific terms, because if I use more of scientific terms, it may be difficult for some people to understand that. Absolutely, so for all of us. I will try to use the simple words, जो सबको समझ में है ना, Right, ऐसे right. बात करेंगे so that you understand, isn't it? So is it you want in English, Hindi, or English, whatever it is? Please tell me. Today Hindi is fine. Today it is Hindi is fine. Perfect. Okay. See, what happens is that I'll just tell you the basic mechanism. What happens? You see, the light when it enters inside the eye. See, the black thing you see, you know, it's छोटा सा दिखता है, that is called cornea. है ना, वहाँ से light goes inside and it gets focused through our lens, जिसको आँख का lens कहते हैं हम. It focuses through that lens focuses the light on our retina, जिसे आँख का पर्दा कहते हैं. So when it focuses on our retina, then you see. That is the basic mechanism. The light goes inside the eye, gets focused by our lens, and it focuses on the retina, and we see clear. That is. Great. इस ऑप्टिक नर्व क्या होता है? हमेशा हम सुनते रहते हैं ऑप्टिक नर्व. आँख की नस भी बोलते हैं उसको. Optic nerve means this is, see, eyes are the organs of the body which are attached to the brain directly. You know? So it is attached to the brain through these optic nerves. See, what happens, whatever I'm seeing, I can see Swamiji. How I'm seeing is, I'm looking at the screen, the light is going inside my eye, falling on my retina. Retina say the message is going to the brain, and the picture is formed in my brain. That message is going to the brain through optic nerve. Oh. So their images, they see images formed in the brain, not in the eye. So this is the we think that we is seeing through the eyes, but basically it is through our brain. है ना, मैं देख रहा हूँ स्वामी जी को, the image is formed in my brain, but it seems as if I'm looking through my eyes. So it's like, and it's a brain. If I go into detail, I think that will not required. The thing is, optic nerve is the connection between our eyes and our brain. Okay. So anything happens, कुछ भी ऑप्टिक नर्व में होता है, then हमारे आंखें देखने में तकलीफ होता है, right? Yes. Okay. See, optic nerve get damaged in so many things. If it gets damaged, we will not be able to see. Our vision goes down. और टीयर्स का क्या रोल है? आंख में जो आंसू आता है उसका क्या रोल है? आंसू का बहुत सारा रोल है. उसके ऊपर मैंने, स्वामी जी, if you don't mind, मैंने एक छोटी सी PPT ना, actually see, today is the time when everybody is using lot of computers, mobile phones, or you can just say electronic media, isn't it? Right. So I prepared 8 to 10 slides. It will take me around give me some 7-8 minutes. I will just go through those slides and just tell you what is this computer vision syndrome, how we should take care of our eyes, what all we should do. So just please tell me when to start that or about that. I will just tell some. I need some 8 minutes, 10 minutes, like something. We can do it right now. I will discuss that about our class, how it works, and क्या हम चीजों का ध्यान रखना है. We can do it right now. We can do it right now. Yeah. Is it okay? Yeah, perfect. You are already the co-host, so okay, you can share your screen. I just share the screen and do it. Yeah, sure.
I can share Mohan ji if you want. Okay. Okay. No, Now it's no, it's done. It will be done. Okay. Are you able to see now? Is it okay? Perfect. yes. Yes. Is it clear on the screen? Okay, okay. See, computer vision syndrome, or we can say dry eye syndrome and other eye problem due to use of computer, laptop and mobile phone. We'll be just discussing what all things we should take care, what all things we should do. Just I'll be going little, like it's nothing scientific. I'll be going little quickly. If anybody has any problem, just let me know. I'll just stop and do it again. See, computer vision syndrome is a general term used to describe a variety of vision-related symptoms that may be aggravated by regular use of a computer for 2 or more hours a day. The longer the use of computer leads to decrease in blink reflex. Okay? See, this means that while working using a computer, we tend not to blink as often we should. See, normal blink rate is 16 to 20 per minute, but it decreases to 6 to 8 per minute, or maybe less than that when we are working more with the computer. See, it goes like this. The more we concentrate, the less we blink. It should be other way around. The more we concentrate, more we should blink, but what we do is the other way around. See, blinking is critically important for spreading of tears to form an even film on the eye surface, and also in refreshing this tear film. Thus, in the absence of adequate blinking, eyes becomes dry and irritated. See what happens. Normally also, we have a very thin layer of water layer, you can say the tear film in our eyes. So the more we work with PCs, the less we blink, the more disturbed is that layer. So when it gets disturbed, so we get all those problems. We'll discuss further. See why computer and like devices are culprit. See what happens is, नॉर्मली पहले क्या होता था, हमें पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पुराने टाइम में भी नहीं थी, आज से 100 साल पहले भी बात करिए, अब 50 साल पहले ही कर लो, इतनी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी हमें. क्यों? See what happens is, when we look in the distance, our eyes are relatively relaxed and at rest. है ना? हम जब ब्रॉड देखते, सामने देख रहे हैं ना, ब्रॉडली देख रहे हैं, तो आईज पे इतना स्ट्रेन नहीं है, फोकस इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ता, फोकस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वी आर लुकिंग द ब्रॉडर व्यू. See, when it becomes narrow, we are focusing on the screen. What happens is, but when we look at computer continuously, characters on the computer screen do not have well-defined edges. They are brightest at the center and diminish in intensity towards the edges. तो क्या होता है, सेंटर में भी क्लियर दिखता है और पेरिफेरी पे ब्लर्ड है, तो सेंटर पे कंटिन्यूसली क्लियर देखने के लिए ना हमें आईज को लगातार स्ट्रेन करना पड़ता है कि टू सी क्लियर हमें करना पड़ता है ना. आपने देखा होगा जब हम पीसीस पे कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप देखना आप थोड़ा सा स्ट्रेन करते हैं आईज को, थोड़ा सा फोकस करने की ज्यादा कोशिश करते हैं. एंड यू थिंक if you are working for half an hour or so, it is fine. If you are working for 8 to 10 hours, 8 से 10 घंटे जब आप काम करेंगे, वो थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन ज्यादा डाल रहे हैं, तो what will be condition of our eyes? You can just imagine. See, this is what are the causes? Causes is computer vision syndrome is a poor position in relation to the computer. अगर हमारा posture ठीक नहीं है, that is also one cause. कोई भी किसी भी तरह का glare और reflections, fuzzy images और images that are too dim or too bright, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है. These are the reasons for strain on our eyes. Use of glasses, this is also very important. हम आमतौर पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि use of glasses that are inappropriate for the user's position and distance from the screen. See what happens is, हमारा suppose हम नियर का glasses लगाते हैं, we need to work on a proper distance for that particular power. अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो पावर ठीक से काम करे. If we take it little away or little nearer to the as compared to that particular distance, we will not see clear, है ना. तो एक particular distance पे ही हमें साफ दिखेगा. Minor visual defects such as astigmatism that might go unnoticed can be exaggerated, which intense computer use. इसके बाद थोड़ा सा बता, मतलब कि so you can see, नीचे आप देखिए एक बार, जब astigmatism होता है ना, अगर पहली इमेज हमें astigmatism नहीं है, मैं बता दूं astigmatism means चश्मे का वो नंबर जो हमें आंख में किसी एक्सिस पे चाहिए, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री पे जो नंबर चाहिए होता है, उसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं या सिलेंड्रिकल पावर बोलते हैं. वो नॉर्मल अगर आपकी 0.5, 0.75 है ना, तो आपको ग्लासेस नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा. लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, दैट इवन हाफ ए डायप्टर, आधा नंबर भी आपको परेशान कर सकता है अगर उसको करेक्ट करके आप नहीं पहनते.
This we need to take care. Other contributing factors are constant gazing at the near distance at the monitor, which leads to convergence fatigue. लगातार हम पास देखते हैं तो हमारी आईज लगातार कन्वर्ज करती है. मैंने बताया ना, फोकस ज्यादा देर रहेगा तो आईज टायर्ड हो जाती है, फटीग हो जाती है. Fixed posture while working long hours. The eye muscles do not get much opportunity to move, है ना, हमारी मूवमेंट ही नहीं है. Uncorrected visual defects, अगर हम अपने चश्मे का नंबर करेक्ट नहीं पहनते या पहनते ही नहीं. Glare from lighting in the workplace and direct lighting coming in from the exterior. अगर डायरेक्ट लाइट आपकी स्क्रीन पे पड़ रही है और वो उसमें ग्लेयर है तो that can also cause a problem in your eyes. So what are the symptoms of CVS? CVS means computer vision syndrome. So you can get double vision. आंखें जब थक जाती हैं, मसल्स टायर्ड हो जाते हैं तो आपको दो भी दिखाई दे सकते हैं, है ना. टेम्पररी नियर साइटेडनेस, मतलब लगातार पास का काम करते हैं ना तो हमें पास का क्लियर दिखता है, जैसे आप दूर देखोगे सब कुछ धुंधला लगेगा तो घबरा जाते हो, चश्मे का नंबर लग गया. It is not like that, because we are working continuously for the near, and this is also one of the reasons. आज के हर एक घर में चाहे पेरेंट्स को नंबर है चाहे नहीं है, बच्चों को नंबर जो आ रहा है ना, the reason for that is the more of near work. Our work is more and more, it is becoming, we are becoming near workers. That is the reason we are getting more and more minus numbers. So other thing it can cause is dry eye, photophobia. Photophobia means decreased tolerance to light. Light से irritation होती है, eyes में हमें glare लगता है. Other symptoms may be headache, eye strain, redness and watering of eyes, neck and back aches. क्योंकि continuously जब एक ही posture में बैठते हैं जो correct posture नहीं है, तो that can cause aches, especially in the neck and back muscles. So prevention or things to be done to minimize CVS, क्या कर सकते हैं हम? See, first is you definitely do the things I am telling you, but if you feel things are not getting okay, you should show to ophthalmologist. अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं. कुछ और चीजें हम जो कर सकते हैं वो ये है कि this is very important formula. Just remember 20-20 formula. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds and blink 20 times. इसमें 20 ऐड कर दीजिए. In 320s, we can add the 420 is every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds and blink your eyes for 20 times. है ना? तो इन सब चीजों से क्या होगा? I will tell later on. See, reduce glare, direct and overhead lights away from the computer screens. Yes? Anything? Okay. Position your monitors so that all the windows are to the side rather than to the back or the front. Adjust window blinds so that in sunlight is away from your screen and your eyes. I'm sorry. Please unmute yourself, Dr. Sir. Okay, the next is avoid sitting in front of an air conditioner facility because facing the air conditioner you should avoid. This is very important because nowadays all the working places they have air conditioner, isn't it? So if you are getting the blower is direct, it's facing you, you're getting direct air in your eyes, you should avoid that. That is very, very dangerous. Slowly, within a span of 1 year, 2 years, you will get severe dry eyes and you may land up in trouble, that much trouble that you will not be able to work. You will not be able to do your work. Okay. And computer users can reduce fatigue by taking breaks. See, this is very important. Take 5 minutes break every 30 minutes. Okay. Otherwise 45 minutes तो must है ही है. 45 minutes के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है. कुछ भी हो जाए. See, just get up, एक राउंड लगा के आ जाए और जब लगे कि 2 लोग नहीं आए, colleague उनको just say hello, go there and say hello and come back. Go to washroom break, whatever it is. 45 मिनट से ज्यादा बैठना ही नहीं है. One is this, one is 20-20 formula जो मैंने बताया, उसको भी फॉलो करें रेगुलर. See, this is just to show. इतना याद करने की जरूरत नहीं है. ये ब्राउन कलर का ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमारे टीयर्स बनते हैं, इस ग्लैंड से बनते हैं. एंड देयर आर स्मॉल पोर्स होते हैं जो वहां से टीयर्स हमारी आंख के अंदर आते हैं. फिर ये हमारी आंख के अंदर बहते हैं और मीडियल साइड से अंदर की तरफ से यहाँ होता है ग्लैंड. यू कैन लुक एट मी. यहाँ से बनते हैं आंसू, आंख के अंदर ऐसे जाते हैं फ्लो करते हुए. यहाँ हमारे यहाँ रास्ता होता है, इसके रास्ते से नाक के रास्ते अंदर से वो अंदर चले जाते हैं गले में. तो दिस इज द नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ टीयर ड्रेनेज. दिस जस्ट टू शो दैट ग्लैंड्स इस ग्लैंड से बनते हैं हमारे. सो क्या होता है, क्या है काम
इन सब जो मैंने सब चीजें बताई कि आप फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करते रहें, 20-20 फार्मूला, ग्लेयर को थोड़ा अवॉइड करना है, ब्रेक लेना है, और साथ में इसके साथ ये कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन यूज आर्टिफिशियल टीयर्स, यू गेट आर्टिफिशियल टीयर्स इन द मार्केट, यू कैन यूज दैट। इन सब चीजों से करने से क्या होगा, विल बी डूइंग द सेम वर्क, हमें काम वही करना है, बट आवर कंफर्ट लेवल विल बी मोर। हम विदाउट एनी प्रॉब्लम से, हम आंख में जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, without facing all those problems, we can do our. Because this is a small presentation I made, I thought it will be helpful for everybody. Thank you so much. It was really helpful. It was really, really helpful. So there are few questions. अभी हमारे बहुत सारे लोगों से आए हुए। एक तो somebody wrote to me that suddenly, occasionally, every 2-3 months रात को अचानक tears बहना शुरू होता है और फिर सुबह तक ठीक हो जाते हैं। तो अब जो जिनके साथ ऐसा है, क्या वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऐसा है? मोबाइल पे काम करते हैं। It happens here. It's again the same thing. The more you work with the mobile thing, your tear film gets disturbed, eyes, muscles get fatigued. Due to that tiredness, you get that watering. And by the morning, eyes get the adequate rest, you become all right. It is the same cycle. When you are using all this electronic media, by the day end, evening, you will feel uncomfortable in your eye. You will feel your eyes are not good. They're irritated, irritation, some itching, redness, grittiness, foreign body sensation. You don't feel healthy in your eyes. But morning, again, you become okay because the eyes got this adequate rest. डॉक्टर साहब, कितने दिनों में आँख चेक कराना चाहिए और कितने उम्र के बाद रेगुलर आई चेकअप करनी चाहिए और कितने इंटरवल के बाद? अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं तो साल में एक बार जरूर आए। 40 से पहले जब भी आपको प्रॉब्लम लगे, मे बी ऑफ द कम दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, एक बार जरूर आई सर्जन के पास जाएं, सो दैट से जब भी आप जाते हैं ना, तो दे चेक योर विजन, दे चेक योर प्रेशर। आंख का भी जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना बॉडी के लिए, ब्लड प्रेशर, लाइक दैट देयर इज ए इंट्राओकुलर प्रेशर, आंख का भी प्रेशर होता है। तो दे चेक प्रेशर फॉर योर आईज आल्सो, कि वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट। आपका पूरा कंप्लीट एग्जामिनेशन हो जाता है। और यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि ग्लोकोमा करके कहते हैं, काला मोतिया ग्लोकोमा। दैट डिजीज इज स्टिल डायग्नोज्ड, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर स्टिल टुडे आल्सो दे आर डायग्नोज्ड ऑन रूटीन एग्जामिनेशन। जब आप रूटीन एग्जामिनेशन पे आते हैं, हमें पता लगता है, क्योंकि उसके कई बार कुछ लक्षण मिलते ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं लगता। पहले तो उसकी डेफिनेशन थी कि जब आंख का प्रेशर ज्यादा है तो आपको जाना है। जब हमें आंख का प्रेशर, अभी ऐसा भी है कि आंख का प्रेशर नहीं भी ज्यादा है तो भी काला मोतिया हो सकता है। तो कैसे पता लगेगा? डॉक्टर के पास जाके ही पता लगेगा। आफ्टर 40, वंस इन ए ईयर यू शुड गो। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, डीप कप्स जो बोलते हैं कि ग्लोकोमा में, हाँ, या वही जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया ना, स्वामी जी आपने पूछा था तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है। वो जब ग्लोकोमा में उस ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है, तो हमारी जो आंख के अंदर जो ऑप्टिक नर्व की जो रेशियो होती है ना, उसको हम जो डीप कप आपने बताया, वो नॉर्मली डीप कप नहीं होता। वो डीप कप तब हो जाता है हमारी आंख के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर वो डीप कपिंग हो जाती है जब हमारा काला मोतिया होता है आंख के अंदर। जैसे जैसे कप वो बढ़ता जाता है, समझते जाइए कि हमारी ऑप्टिक नर्व का डैमेज बढ़ गया। दैट इज ऑप्टिक कपिंग। सो क्या आंखों का प्रॉब्लम हेरिडिटी से होता है? माता पिता को रहा है तो बच्चे को होना संभावना है? हाँ, ऐसा है। जो काला मोतिया है और बहुत सारी बीमारियां और भी ऐसी हैं, आई की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दे रन इन फैमिली, उसमें ग्लोकोमा भी एक है, आंखों का नंबर आना भी है। बट सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत कुछ है, वो एक फैक्टर हाँ यस है, वो भी है। मैं एक अनयूजुअल क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट था उसके लिए। विलेज से, गुजरात की गांव में एक प्रिंसिपल है जो बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं। उनकी आंख में ना, एक आंख में एक फुंसी जैसा कुछ होता है और उसके बाद वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है और ये लंबे समय, तो बहुत ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक, ऑपरेट कराने के बाद भी वापस आता है। अब उनका सिम्टम्स है हेडेक, ओकेशनल हेडेक एवरी वीक, लाइट का सेंसिटिविटी हो गया, and dry eye, and that thing comes again and again. So I know that it's very difficult to answer this question, but फिर भी उनको अच्छा लगेगा कि इसका क्या। इसके लिए उनको सबसे पहले तो ये चेक कराना है उनका आंख का नंबर तो नहीं है, क्योंकि जो आंख में फुंसी बार बार निकलता है ना, वी कॉल इट स्टाई, विच इज पेनफुल। दैट स्टाई इज द इन्फ्लेमेशन। आंख के हमारे ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, उनका इन्फेक्शन हो जाता है।
वो अगर हमारा आंख का नंबर होता है ना, अगर चश्मे का नंबर है, अगर उसको नहीं यूज करते तो क्या होता है, आईज गेट टायर्ड, तो टायर थोड़ा ईचिंग होता है, तो क्या करते, सबसे पहले हम ऐसे आंख से मलते हैं। तो जब हम अपने हाथों को आंख पे लेके जाते हैं ना, तो दोज ग्लैंड्स गेट इन्फेक्टेड, तो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है, पेन भी होता है। सबसे पहले तो नंबर चेक कराएं, अगर नंबर है, वे सबसे पहले तो यही चीज, अगर नंबर है तो उसको करेक्ट कराएं, उसी से ये चीज हेडेक भी ठीक हो सकता है, बाकी चीजें भी ठीक हो सकती हैं, और आप अपना ब्लड प्रेशर भी जो चेक कराएं, और आंख का प्रेशर भी। Fantastic. Anupama, back to you. You can take all the other questions, sir. थैंक यू स्वामी जी। डॉक्टर मोहन, थैंक यू, आपने बहुत ड्राई आइज के ऊपर अच्छी इंफॉर्मेशन दी, काफी क्वेश्चंस भी है उसके ऊपर। सो एक चीज आप अभी जो बोल रहे थे उसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। आप आई प्रेशर जो बोल रहे हैं, तो आई प्रेशर क्या होता है और मतलब कैसे इफेक्ट करता है? यस, दैट इज गुड क्वेश्चन। इस चीज के बारे में आमतौर पे लोगों को पता नहीं रहता है, और आप सर्च भी करोगे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं भी मिलेगी। बाकी तो मिल जाती है कि ड्राई आई के लिए क्या करना है, क्या ड्रॉप डालना है, क्या करना चाहिए। आंख के प्रेशर के ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि आंख के प्रेशर के बारे में लोगों को मैं जब बोलता हूँ आंख का प्रेशर चेक करना, हाँ हाँ हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है। सो दैट इज नॉट ब्लड प्रेशर। आई प्रेशर इज वी मेजर विद, हम अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आई प्रेशर वो प्रेशर है जब जो हम मेजर करते हैं कि इसी, दिस इज नॉर्मल इज बिटवीन 10 to 22, वी टेक नॉर्मल। मतलब इसका ये है कि ये आंख का प्रेशर हम जो नापते हैं अपनी मशीन से, अगर इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हो सकता है अनुपमा जी के लिए 15 प्रेशर आंख का नॉर्मल है, और मेरे लिए 17, और स्वामी जी के लिए 16। तो यानी इस पे हमारी आईज ठीक से काम करेंगी, बट 21 प्रेशर पे हो सकता है मैं ठीक, मेरी आईज ठीक काम करें, स्वामी जी की भी ठीक करें, अनुपमा जी की ठीक ना करें। तो वो प्रेशर जिस पे आपकी आंख ठीक से काम करती है वो नॉर्मल कहा जाता है उस पर्टिकुलर आई के लिए। उसकी रेंज हम लेके चलते हैं 10 से 22, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू 22 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम नॉर्मल लेके चलते हैं। उससे ऊपर आए तो हमें फिर अपने हिसाब से टेस्ट करने पड़ते हैं, ये ज्यादा तो नहीं है, इसलिए अपना ये एग्जामिनेशन कराने जरूर जाएं। चाहे आप यंग भी हैं, अब तो ग्लोकोमा इज कमिंग इन यंग पेशेंट्स आल्सो, तो आप जरूर चेक कराएं। अगर आई प्रेशर, वैसे तो आई डॉक्टर चेक करेंगे ही, अगर नहीं भी किया तो कहीं हमारा प्रेशर भी चेक करिए। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टिल मोस्ट ऑफ द ग्लोकोमा पेशेंट्स आर undiagnosed, they are just moving about undiagnosed, and that is not a good disease, because by the time patient comes to us काफी हद तक विजन डैमेज हो चुका होता। ग्लोकोमा, काला मोतिया की बात कर रहा हूँ, काफी हद तक डैमेज हो चुका होता। तो उसको बचाने के लिए एक ही तरीका है कि रेगुलर एग्जामिनेशन वंस इन ए ईयर। ओके फाइन, डन। ओके, थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पफी आईज के लिए। सो कोई सोल्यूशन है उसका बैग पफी आईज के लिए? पफी आईज सी, उसके 2-3 रीजंस हम समझ लेते हैं, जिसका भी क्वेश्चन है उनको समझ में आ जाएगा। सी पफी आईज, द रीजन इज नंबर 1, यू कैन से अगर आप कम सो रहे हैं या ज्यादा सो रहे हैं। नंबर 2, अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो पफी आईज हो सकती है। नंबर 3, अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स का, है ना। तो दीज आर द मेन रीजंस हैं पफी आईज के लिए। और इनमें से अगर कुछ नहीं, आप देख लीजिए, बीपी आपका ठीक है, कंप्यूटर पे एक्सेसिव यूज, एक्सेसिव स्लीप और लेस स्लीप, और कंप्यूटर का ज्यादा यूज, और किडनी प्रॉब्लम, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो डोंट वरी, दे कैन बी, लोगों में किसी किसी लोगों में हो भी सकती है, पर आमतौर पे इन चारों में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सॉल्यूशन टू स्क्विंट इन आईज? तो मतलब जो जिन्होंने पूछा उनके 16 ईयर बेटे को है ये। स्क्विंट के सबसे पहले तो, अगर स्क्विंट मींस दोनों आईज हमारी पैरेलल नहीं रहती, एक थोड़ा अंदर जब बाहर चली जाती है उसको स्क्विंट बोलते हैं। सबसे पहले तो उसमें ना चश्मे का नंबर चेक कराना है बच्चों में ना। सबसे बड़ा कारण स्क्विंट का है चश्मे का नंबर होना। अगर चश्मे का नंबर है वो चेक कराइए। काफी स्क्विंट तो चश्मे का नंबर अगर है लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ अगर उसके चश्मे के लगाने से ठीक नहीं हुए तो उसको ऑपरेशन भी किया जा सकता है, सर्जरी से भी करेक्ट। ओके, And I would like to tell everybody that Dr. Mohan surgeon है, eye surgeon है. He also does all these surgeries, right? If further आपको information चाहिए, you can even consult him professionally. Yeah, Anupama, please. या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क सर्कल्स पे। तो
बहुत सारे होते हैं आजकल लोगों See, को। dark circles के reasons I'll tell you. There are few reasons again. Dark circles. It's not only due to eye problem. There may be other systemic problems also. ये हमेशा ध्यान में रखिए कि whenever we have some problem, थोड़ा systemic approach को हम ध्यान रखें कि eye में problem है. Eye is the window of the body. See, हमारे आप सबको पता है कि बॉडी में लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं जिसमें खून जा रहा है, वापस भी आ रहा है, हार्ट से जा रहा है, हार्ट वापस आ रहा है. हम कहीं देख नहीं सकते. आई इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी वेयर वी कैन सी द ब्लड वेसल्स डायरेक्टली. हम आंख का जब पर्दा देखते हैं ना, उसमें सब खून की नलियां हमें दिखाई देती हैं. आर्टरीज भी दिखती हैं, वेन्स भी दिखती हैं. आर्टरीज मीन्स जो ब्लड लेके आती हैं, वेन्स मीन्स जो हार्ट पे ब्लड वापस लेके जाती हैं. वो सब हमें दिखता है अंदर, है ना. तो वी सी ऑल, we can see in the eye and can tell कि where is the problem, body में कहाँ problem है, हमें उसका आइडिया लग जाता है. तो उसी तरह जो डार्क सर्कल्स हैं, that may be due to some other reasons also, or maybe due to your poor diet also. आप बहुत sedentary lifestyle है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, आईज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, चश्मे का नंबर ज्यादा, एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, डाइट पुअर है, हाँ, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आईज की भी एक्सरसाइज नहीं है. तो that can all issue the dark circles under eyes. You can use for that, improve what I discussed just now, improve those things, plus check the medical document physician also for any systemic problem. वो भी जरूर लेके चलें. और क्रीम्स आती हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, दे आर कॉल्ड अंडर आई क्रीम करके भी आती है, और कॉस्मेटिक शॉप यू कैन आस्क, दे कैन गिव यू दोस क्रीम. अगर और कोई सिस्टमिक कॉज नहीं है तो उस क्रीम से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है. क्या कॉन्टेक्ट लेंस की यूज करने से आई थिंक एक्सरसाइज हेडेक, के बारे में भी पूछा है. सॉरी, क्या कॉन्टेक्ट लेंस ओवर यूज करने से हेडेक हो सकता है? आई थिंक किसी ने एक्सरसाइज के बारे में भी पूछा है. हाँ, हो सकता है. यस, हो सकता है. आई हो सकता है. प्रेशर को मेंटेन करने की Can have that. एक्सरसाइज. हाँ, आई प्रेशर नहीं, आई से एक्सरसाइजेस एज सच, जैसे आप, मैंने अभी बताया, जैसे आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई थिंक आज के डेट में सबको यूज करना ही पड़ रहा है. तो उसमें मैंने बताया कि फॉर दैट व्हेन वी लुक एट द स्क्रीन वी कंटिन्यूसली फोकसिंग आवर आईज. तो हम आई को हमें हिलाने का मौका ही नहीं मिलता, तो आईज गेट फटीग. तो आई एक्सरसाइजेस हैं फ्यू, आप सब लोग मेरे साथ करो, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करनी है. आप सब मेरे साथ करिए, है ना. या तो मुझे हाईलाइट कर दो या फिर मुझे हाईलाइट कर दो. मैं You are highlighted already. You are already highlighted. हाईलाइट है ना. तो जस्ट एवरीबॉडी जस्ट लुक एट माय आईज, है ना, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है. विल डू टुगेदर. मैं बीच बीच में शायद ना करूं या वापस आ जाऊं, बट आप सब लोग इंस्ट्रक्शन सुन के करते रहना, है ना. मुझे देखिए वापस नहीं आना आपने. जल्दी से 3-4 मिनट लगेंगे, सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, बैठे बैठे करेंगे, ठीक है. सो क्या करेंगे, फर्स्ट जस्ट सिट द बैक स्ट्रेट, है ना, लुक स्ट्रेट. नाउ जस्ट लुक टुवर्ड द राइट साइड. दाईं तरफ आंख को ले जाएं, और जितना दाईं तरफ लेके जा सकते जाएं. सिर नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंखें हिलाएंगे. नॉर्मली थोड़ी देर रुकें. मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि हम, इतना समय नहीं है हमारे पास. आप सब लोग जब खुद से करेंगे तो बाद में टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं. अभी लेफ्ट साइड देखें. एक्सट्रीम गेज पे लेके जाना है, वो इंपॉर्टेंट है, जितना लेके जा सकते हैं. एक बार फिर से राइट, लेफ्ट, ओके. नाउ ब्रिंग इन द सेंटर. नॉर्मली जब आप घर पे करें एटलीस्ट 3 बार तो मिनिमम जरूर लेके जाएं. अभी नाउ लुक आप ऊपर देखें, नीचे, ऊपर, नीचे, ओके. ये तो हो गया जो मसल्स हमारे दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं. अब क्या करेंगे, देयर आर मसल्स. अब ओब्लीक देखते हो, टेढ़ा कैसे करके देखते हो, ऐसे करके देखते हो, ऐसे और ऐसे करके देखते हो ना. तो क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड ओब्लीक मसल्स. तो आपने कैसे देखना है, दायां तिरछा, राइट साइड और ऊपर ऐसे तिरछा. इसको और थोड़ा सा अगर कर सकते हैं, कैसे करें, ओके, जस्ट लुक एट मी. आप ऐसे कर सकते हैं, थंब को सामने रखिए और दोनों थंब को साइड पे ऊपर ले जाएं, डायगोनली ऊपर ले जाएं, और इतना ऊपर लेके जाएं, और दोनों थंब्स को देखें, ऊपर देखें और नीचे देखें. थंब्स को इतना दूर करें कि आप जहां तक आपको दिखाई दें. देखिए ऊपर, नीचे. यस, oblique muscle. This is for the oblique muscles. You can come back, just change the direction of your thumbs and take them again. Take your thumbs away from your body. उतना दूर लेके जाना है जहां तक आपको दोनों आईज से
ऊपर देखें, नीचे देखें, थम्स दिखने चाहिए आप। ओके, रिलैक्स। कर पाए सब लोग? हाँ, अभी आगे भी चलेंगे। तो अभी इसके बाद क्या करना है, जस्ट टेक योर थंब, लुक एट योर थंब, और थंब को, पेन भी ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं, थंब को पास लाते रहें, इन लाइन विद योर नोज, अपने आंख के पास लाएं, और जहां आपको थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाए वहां रोक दें, और लगातार देखते रहें। और जब तक आंख ब्लिंक ना करें, मतलब जब तक आंख को बिना ब्लिंक किए रोक सकते हैं रोकें, देखते रहें। थोड़ा और पास ले आए। अभी क्या करना है, थंब यहीं पर रहेगा, यू फोकस ऑन समथिंग डिस्टेंट, सामने दीवार पे देखें, जो भी चीज उस पे देखें, फोकस ऑन समथिंग डिस्टेंट, सामने देखें। अंगूठा यहीं पर रहेगा, फिर अब अंगूठे पे देखें, अगेन लुक एट योर थंब, लुक एट समथिंग डिस्टेंस, दूर देखें, फिर पास देखें, दूर देखें, रिलैक्स। अभी मैं थोड़ा, आपको कुछ पल करना है घर पे। अभी क्या करना है, आईज को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, और इसमें ध्यान क्या रखना है, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है, मेक एज बिग सर्कल एज पॉसिबल, बड़े से बड़ा, एक्सट्रीम गेजेस पे जाइए, बहुत तेजी से नहीं, थोड़ा सहज रहेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन, अब आईज को जोर से बंद करेंगे, खोल देंगे, वंस मोर, क्लोज योर आईज फोर्सफुली, रिलैक्स। एक बार और, क्लोज योर आईज फोर्सफुली and relax. Okay. Now the last point. See, I showed you one diagram in my slides. No, you saw the eye diagram. I showed कि tears आते हैं, फिर आंख के अंदर से यहाँ नाक के रास्ते चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर नीचे वाली पलकों पे यहाँ पर there are small pores, वहां से tears अंदर जाते हैं, एज के साथ वो बंद हो जाते हैं। तो उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे ना, तो वो पोर्स बंद नहीं होंगे, क्योंकि उस पोर्स का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। उसको अवॉइड करना है तो थोड़ा सा यहाँ ऐसे घुमाइए, हल्का हल्का घुमा के, थोड़ा सा नाक के साथ साथ नीचे भी ला सकते, तो वो पैसेज हमेशा ओपन रहता है, नाक के साथ साथ रखेंगे। So very simple, 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening, your eyes will be fit. Thank you so much. It was nice. अभी फ्रेश कैसा लग रहा है? फ्रेश लग रहा है आईज में? स्पेशली जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए इट विल बी वेरी नाइस। सभी के लिए वैसे जरूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके लिए ज्यादा। Yes. Very good, huh? Yes, Anupam. Yeah. So ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी ना, उससे रिलेटेड है शायद डॉक्टर मोहन। तो ये जो आईज है ना, ज्वाइन करती है ना नोज पे, तो ये टियर डक्ट होता है गैस। तो यहाँ पे है ना, मुझे बहुत इचिंग होती है, बहुत ज्यादा, मतलब खुजली सी आती है इवनिंग के टाइम पे स्पेसिफिकली। तो उसका कोई रीजन है? उसके दो तीन रीजन है। देखो, वन इज आई थिंक इफ यू आर वर्किंग विद योर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो डे एंड पे। सेकंड थिंग इज दिस सीजन, ड्यूरिंग दीज टाइम्स, एलर्जी इज मोर ऑफ एलर्जेंस in the atmosphere, so try to avoid going directly into this outside environment, dust, pollution, and inside your AC environment there also there should be fresh air circulation. और अगर थोड़ा सा itching ज्यादा है तो there are few anti-allergic drops are there, you can use for a few days, you can stop that, but थोड़ा सा working atmosphere को ठीक रखेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। थ्रू आउट द ईयर ही रहता है मुझे डॉक्टर? थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो यार यू वर्किंग विद मोर विद कंप्यूटर्स लाइक? हाँ, तो वो आर्टिफिशियल, ओके, तो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, बेटर क्वालिटी के, वो सोडियम हाइड्रोनेट करके आता है उसके अंदर। यू कैन राइट मी सेपरेटली, आई विल राइट यू दैट सॉल्ट, पर्टिकुलर सॉल्ट, यू यूज दैट, यू विल फील डेफिनेटली फील बेटर। आर्टिफिशियल टीयर्स भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें देयर आर सो मेनी कैटेगरीज है ना, एक सिंपल भी हैं, उससे बेटर 4-5 कैटेगरीज फॉर आर्टिफिशियल टीयर्स आल्सो।
when it's dry eye also is mild, moderate and severe. So depending for the severity, we write that. Examination करते हैं machine पे, we find out what is the your tear film health we see. How healthy is your tear film? Accordingly, we prescribe the medicine. It helps. So somebody has a question, Dr. Mohan, that जब वो आँख को घुमाते हैं तो हेयर जैसा, बालों जैसा कुछ दिखते हैं उनको. That's called floater. वो कुछ नहीं है, क्या होता है, और आँख का हमारा पानी होता है ना, पीछे वाला लेंस के पीछे वाला पानी, that is उसकी कंसिस्टेंसी होती है, that is like a viscous. वो गाढ़ा होता है ना, बिल्कुल पानी की तरह नहीं है, वो गाढ़ा होता है. It's a viscous material. वो समय के साथ साथ कहीं कहीं वाटरी हो जाता है. It becomes watery some places. वो जो वाटरी हो जाता है ना, तो you look this side, it goes this side. You see left side, it goes to left. That is nothing to worry. जब वो कभी वो बहुत ज्यादा दिखाई दें, like it's like a shower उनका आ जाए, shower of floaters, that is important. एक दो दिखते हैं, कोई बात, that is normal, nothing to worry. कोई disease नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मेरी दोनों eyes में है, कोई बात. एकता इज आस्किंग दैट उनको आँख के पीछे कांस्टेंट दर्द रहता है और जब भी कोई एक्सर्शन होता है तो बढ़ जाता है. हाँ, तो सबसे पहले तो अपना नंबर जरूर चेक कराएं, डायलेट कर. सी नंबर चेक कराने, एक आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, डोंट गेट योर नंबर चेक व्हेन एन ऑप्टिशियन, जो चश्मे की दुकान पे बैठे होते हैं, वहां नंबर कभी मत चेक. सी देयर मोटो इज नॉट टू गिव यू एग्जैक्ट नंबर, देयर मोटो इज टू सेल देयर ग्लासेस एंड देयर चश्मा. गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल ऑलवेज डायलेट, आपकी आंखों में दवाई डालेंगे, पुतली को फैलाएंगे, आज नंबर चेक करेंगे और नेक्स्ट टाइम नंबर देने के लिए बुलाएंगे. दैट इज द बेस्ट वे टू गेट योर आई, यू गेट योर आई नंबर. ऐसे ही लेना हमेशा, कभी भी डायरेक्टली बैठे नंबर आ गया, दे दिया, कंप्यूटर से निकाल के दे दिया. हम सोचते हैं कंप्यूटर से चेक किया जी, कंप्यूटर से चेक किया, दैट इज नॉट गुड ना. कंप्यूटर से चेक किया ठीक है, इट इज गुड मशीन, बट विदाउट डायलेटिंग योर आईज यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट नंबर. अपना नंबर चेक कराएं सबसे पहले, उसी अगर नंबर आएगा तो वो लगाने से ही आप ठीक हो जाएंगे. Next question is coming. What is the reason, that is from abroad actually, what is the reason that one sees black spots falling or floaters? See what again I told, that is one, the water behind is like a viscous. With time it may be due to aging, due to some trauma, चोट लगने से, या due to some surgery, that we get that the viscous water of the eye get disturbed, you see those floaters. Sometimes वो जो हमारा पीछे वाला पानी होता है ना, मेरा viscous material I told, that is attached to that optic nerve, वहां से उसकी attachment जब हटती है तो भी दिखाई देते हैं floaters. That is also normal. जब बहुत ज्यादा दिखाई दें, like a shower, that is significant, you should go to your doctor. I have some spots in my vision to which my doctor said to ignore. Can you please tell me what it is? Again, I told just now what I told, these are the reasons for that. See, it's a one floater you see right, left, it goes with your eyes, nothing to worry. उसको कोई बीमारी नहीं है, आपकी आंख को कोई से नुकसान होने वाला नहीं है. हाँ, जब वो बहुत ज्यादा दिखाई दें तब आप जरूर दिखाइए. Sometime I read different word, similar one on screen, which is actually not. Again, see again, your eyes are getting tired. ये आपको एकदम जैसी देखें तब नहीं लगता होगा, कुछ समय जब काम कर लेंगे, you might feel like this because your eyes are getting tired, muscles are getting fatigued because continuously focus कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी बताया, उसके लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताए हैं ना, ये आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे हर 2-3 घंटे में एक बार कर लीजिए. Just it will take you 3 to 4 minutes, but all these things will go. Your comfort level will increase when you work with the computers. और second thing is अपना नंबर भी जरूर चेक कराइए. एक बार नंबर, मैंने बताया ना एस्टिमेटिज्म नंबर होता है, वो थोड़ा बहुत भी होगा ना, अगर आप पीसीस पे काम करेंगे, कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो दैट विल गिव यू ट्रबल. हमारे सामने अभी 10 मिनट समय है डॉक्टर साहब, और हम चाहेंगे, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, हम चाहेंगे आप अपने तरफ से हमें कुछ बताएं जो हम सबके लिए ज़रूरी है. जनरली वी डू द सेम थिंग, वी गिव एवरीबॉडी, रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 मिनट आप हमें कुछ भी बताएं आंखों को रिलेटेड या एनीथिंग व्हाट यू फील लाइक. मुझे तो फिर प्रेजेंटेशन अभी लेना चाहिए था. प्रेजेंटेशन में चल कोई बात नहीं. सी आंखों का कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे आजकल पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि कुछ पेरेंट्स जैसे मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें तो चश्मा लगा नहीं हुआ, हमारे बच्चों को चश्मा क्यों लग गया.
So regarding that, I want to tell few things. अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल्स का और लैपटॉप का यूज करने को कहिए। आजकल मैंने देखा है कि मदर्स क्या करती हैं कि छोटे बच्चों को मोबाइल, खाना नहीं खाते, ले बेटा, साथ साथ वो मोबाइल पे बच्चा खेलता है, उनको खाना खिलाते हैं, या उनको टीवी की आदत डाल देते हैं, ओके खाना खा लेता है बच्चा। सी प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। आप बचपन में तो दे देते हैं, लेकिन बच्चा जब जरा सा बड़ा होता है ना, वो फिर उसको लगता है कि यही मुझे करना है, कि कुछ भी काम करना है तो मेरे हाथ में मोबाइल होना चाहिए या टीवी सामने होना चाहिए। तो दैट इज द मेन रीजन छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। आप देखिए, आप सब जो पेरेंट्स हैं अभी 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, उनको इतना चश्मा नहीं है। अभी जो बच्चे हैं उनको चश्मा ज्यादा लग रहा है। रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ देम आर इंडोर वर्क। हम सब इंडोर वर्कर्स बन गए, है ना, नियर वर्कर्स बन गए। या तो मोबाइल है या लैपटॉप है या वीडियो गेम्स है, कुछ भी है। पहले हमारी आउटडोर गेम्स हुआ करती थी, बाहर हम क्रिकेट खेलते थे, कितना गुल्ली डंडा भी खेलते थे, कितनी पतंग उड़ाते थे। मैंने तो पतंग बहुत उड़ाई, हम सब लोग पतंग उड़ाते। कहाँ गई पतंग? या कोई ऐसी गेम्स जो हम आउटडोर खेलते थे, सब खत्म हो गया हो। डू यू एग्री विद मी? आउटडोर गेम्स आर सो लेस, इजंट इट? वो रीजन है हमारा चश्मे का नंबर आने का बच्चों। तो सेकंड, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम से कम दो, जितना जरूरी है उतना दो। सिट विद योर चाइल्ड, गिव योर प्रीशियस टाइम टू योर चाइल्ड रेदर देन गिविंग मोबाइल्स और लैपटॉप्स इन देयर हैंड्स। और नंबर 2, उसके नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज डाइट। जंक फूड बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक पीना बड़ा अच्छा लगता है, चिप्स, मैगी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए कहाँ से उनको पता लगा इस सब चीजों के बारे में? घर में कहीं ना कहीं ये चीज आई है, जो आपने कहीं ना कहीं बनाई है या खाई है, उनको खिलाई है, तभी ना। कहाँ से आई मुझे बताइए? बच्चा लेके आया मैगी अपने आप कहीं से, या चिप्स लेके आया, या बर्गर लेके आया? नो, these fast foods are killing your kids. I'm telling you, this is not at all good for your eyes, not at all. The best thing for your eyes is green leafy vegetables and seasonal fruits, carrot, all green leafy vegetables. जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं ना, उनमें सब कुछ है जो आपकी आंखों के लिए चाहिए। आप खाना शुरू करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। बच्चे खाते हैं आजकल हर चीज है, पता है, उनको जितना मर्जी बर्गर, पिज्जा, चीज, ये सब खिला दो, ये हरे पत्ते वाली सब्जियां उनका नाक चढ़ जाता, क्योंकि हम खुद भी नहीं खाते, खुद भी कम खाते। सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आप शुरू करिए डाइट के अंदर। लेस ऑफ स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम कम से कम करिए। देखो आजकल, आई एग्री, आजकल ज्यादा होमवर्क ये सब कुछ स्क्रीन पे है, बट आई एम टेलिंग यू, योर किड्स आर स्मार्टर देन यू। वो आपको आधे से ज्यादा टाइम बुद्धू बनाते हैं पेरेंट्स को, कि हम काम कर रहे हैं, बट दे आर यूजिंग आइदर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कुछ और यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, है ना। अगर वो 2 घंटे बैठे हैं ना, तो 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं। आप आजमा के देख लेना, 1 घंटा वो उसमें कुछ ना कुछ गेम्स चल रहा है, कुछ और चल रहा है, वो पढ़ाई नहीं चल रहा है उसको। वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, गिव योर प्रीशियस टाइम टू योर चिल्ड्रन। आजकल जो नंबर आ रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को नंबर लग रहे हैं, उसके यही मेन रीजन, डाइट प्लस फास्ट फूड प्लस स्क्रीन टाइम, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और इतने बच्चे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती चली जा रही है, क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप उनसे जबरदस्ती मोबाइल लेते हो, तो घर में ये बहुत बड़ा लड़ाई का इशू है सबके घरों में। आप, आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद मी फॉर दिस, कि हर घर में बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है सिर्फ इसी बात के ऊपर कि बच्चा यूज मत करो, मत यूज करो, मत यूज करो। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को हमने ही आदत डाली, है ना। तो ये मैं इंपॉर्टेंट हमेशा चीज देखता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, दे आर वरीड कि हमारे बच्चे को चश्मा लग गया, सर मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं है, और छोटी सी उम्र में इसको 3 नंबर का चश्मा लग गया, 4 नंबर का लग गया। तो दीज आर द रीजन बिहाइंड। थोड़ा इसको आप थोड़ा केयरफुल रहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू है कि हम सब लोग वी आर यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके लिए मैंने सारा डिटेल में बता दिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो डू दीज एक्सरसाइजेज रेगुलरली। मॉर्निंग 5 मिनट्स, जब भी जो पीसी पे काम करते हैं वो 3 बार कर लें, जो ज्यादा काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। जो कम करते हैं वो सुबह शाम तो जरूर करें। दीज एक्सरसाइजेस प्लस आर्टिफिशियल टीयर्स प्लस जो सारे मॉडिफिकेशन हो योर लाइफस्टाइल, जैसे करना है, ब्लिंक करना है, ब्रेक लेना है, आईज को 20 फीट अवे देखना है। ये क्यों? अच्छा, अवे देखने से मैं टेल यू साइंटिफिक रीजन क्या है। जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं, मैंने कहा ना कि दूर देखें, चेंज द फोकस। फोकस चेंज करने से क्या होता है, देयर इज ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी
जैसे ही आप फोकस चेंज करते हो, आईज ऑटोमेटिकली ब्लिंक करके देखो। अब सामने देखो, सामने और दूर देखो, आईज अपने आप ब्लिंक करेंगे। करके देखो, जस्ट डू दैट। सामने देखिए और जस्ट स्क्रीन पे देखिए और सामने देखिए, आई ब्लिंक करेगी। एग्री? कर पाए? आंख ब्लिंक करेगी करेगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप फोकस स्क्रीन से हटाते हो, आई ब्लिंक करेगी ऑटोमेटिकली। और जैसे ही ब्लिंक करती है, your eyes get the tear film get redistributed over your ocular surface। आपकी आंख के ऊपर सारी टीयर फिल्म दोबारा से एक लेयर बना देती है, which gives you soothing effect, comfort to your eyes। वो जो इरिटेशन, ग्रिटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इचिंग जो आईज में होती है ना, that will be less। डॉक्टर ये सेकंड साहब एस्पेक्ट। सॉरी, दो क्वेश्चन अब्रॉड से हैं, आउट ऑफ इंडिया से, अफ्रीका से हैं कि माय राइट आई यूजेस कंटिन्यूअसली, व्हाट कॉजेज दिस एंड हाउ कैन वी स्टॉप? सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हेन डू यू नो दैट यू आर गेटिंग कैटरेक्ट? See, first I didn't get the first is what? Oozes, that continuously tears coming out of the right eye. Right eye, okay. Yeah. See, for that you take care of few things. See, just the main thing is, until unless I see the patient, very difficult for me to answer. But if it is only watering, I can tell few things. One is her age. What is the age? If she has written age, any age she has mentioned? Yeah, it's around 57. 57. The first thing is she should get her eye pressure checked, intraocular. It's called intraocular pressure। आंख का प्रेशर चेक कराएं। नंबर 2, चश्मे का नंबर चेक कराएं और आई के डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है इनको कैटरेक्ट भी डेवलप हो रहा हो या नंबर चेंज हो गया हो, क्योंकि जब कैटरेक्ट डेवलप होता है ना, तो नंबर चेंज होता है। हम पुराना नंबर यूज करते हैं, आई पे स्ट्रेन पड़ता है, तो देयर कैन बी वाटरिंग। और जब कैटरेक्ट होता है, उसके लक्षण क्या है कैटरेक्ट के? धुंधला दिखना, नंबर 2 दो दो दिखना, नंबर 3 लाइट पड़ती है तो लाइट ग्लेयर ज्यादा लगता है आंख के अंदर। I think she also has radial keratotomy. Yes, radial keratotomy, this is the surgery done for हाई माइपिया, हाई माइनस नंबर। पहले करते थे इसको, आज से 15-20 साल, 20 years बैक। दिस सर्जरी इज स्टॉप्ड ऑल टुगेदर नाउ। नाउ डेज वी आर डूइंग लेसिक टू रिमूव द नंबर। जिनका माइनस नंबर ज्यादा होता है ना, तो उसको करने के लिए आज के डेट में हम लेजर यूज करते हैं। पहले ये कट दिए जाते थे हमारे कॉर्निया पे, वो रेडियल केराटोटोमी कहते हैं। तो वो दैट कैन बी वन रीजन। शी हैज टू जस्ट गेट हर नंबर चेक्ड एंड इंट्राओकुलर प्रेशर चेक्ड। I'm not clear about this last question, final question. Are we using same eyes number check machine for checking eye pressure as no other No, no, machine no. was used? Yeah, the question I understood. The question is it the same machine for checking the number and for checking the intraocular pressure? No, they both are different machines. Both are different machines. Mechanism is altogether different. So would you like to give us any contact number or details so that लोग आपसे professionally appointment ले सके? Anything would you like to? Yeah, I just show you a slide पे मेरा एक वो है ना, just wrote that last slide में, just I'll put that। अगर किसी को पर्सनल कुछ पूछना है तो they can just ask me। लास्ट स्लाइड था मेरा, मैं उसको इसी पे डाल देता हूँ। हाँ जी, प्लीज। So this is my, I think you're able to see, this is my my clinic is in Rohini in Delhi, so you can, this is my appointment number, it's with my receptionist, my number is also there down, my website is also there, my email is also there, you can find lot of information is there on my website. If you want, you can read, go to the website and you will get a lot of information regarding cataract, glaucoma, all those things, and what are surgeries we do in detail. You will get the information there. So Anupama, I would request you to conclude the session, please. Yes. Yes. Okay. Thank you, Dr. Mohan, for giving such a wonderful knowledge on eyes and discussing all the issues which are very common and all of us had. So yeah, thank you. Thank you, Swamiji, for arranging this session from everyone. All goes to Also. Dr. Mohan. He is so kind that he agreed to come and join this session, and we are really, really grateful to you. Finally, somebody is asking, laser or high power is advisable? Any after effect of long term laser?
Laser high power, we go up to lasers, we go up to 7 or 8 number. After that, there we have other procedures. Like we have other surgeries, we can do that. See, we have to see pros and cons. In usually people say, kya guarantee kya hai? See, in medical, there is no guarantee. We go with the success rate of the surgery. Lot of surgeries are happening in the world those surgeries have just 50 to 60% success rate. But in our case, laser, it has around 98, 99% success rate in laser as well as cataract surgery. That's why only we are touching the eyes. If that much success rate is not there, we will not touch the eyes because patient is already seeing 100% he is seeing. Now we want to give him 100% without glasses. So surgery has to be 98, 99% accurate, otherwise we'll not do it. Fantastic. So definitely would like to have you again after some time. Sure. And thank you very much to give me this opportunity. So that I think I was useful to everybody, isn't it? I mainly concentrated on two things, that everybody gets benefited out of those two things, especially regarding computer use and especially regarding that kids number they're getting, more and more kids they're getting, because I don't feel good when I see the small kids coming, they're getting number. And the main reason is mobiles and electronic media, but the parents, they don't listen. They say, Doctor Sahab, kya kare? Because for them, it has become a very convenient tool. बच्चे को मोबाइल दे दो, वो खाना भी खा लेगा, बच्चे को मोबाइल दे दो, होमवर्क भी कर लेगा, बच्चे को टीवी लगा दो, सब अब मैं अपना काम कर लूंगा. So वो नहीं करिए, प्लीज स्टॉप दैट, मत करिए. आगे चल के आपको खुद ही इस अपने डिसीजन के लिए you will not feel good, you will feel sad कि मैंने ऐसा क्यों किया. हमारे एक बहुत बड़ा ग्रुप है अब्रॉड से, अर्जेंटीना, रशिया, एशिया का, तो वो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली दे आर राइटिंग टू मी कि वी वुड लाइक टू ज्वाइन अगेन विद डॉक्टर मोहन वन सेशन. सो इन द फ्यूचर आई उनके लिए एक सेशन अलग से कर सकते हैं स्वामी जी, अलग से आप चाहें तो आई विल गिव मी टाइम. सेवा के काम के लिए स्वामी जी आगे हैं, जब भी कहेंगे आई विल डू इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर मोहन. थैंक यू अनुपमा. Thank you very much. And thank you everybody. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, doctor.